নমস্কাৰ ইভিনিং হেডলাইন্সৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰিয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ গৌতম আদানীৰ সেল কোম্পানীত 20,000 কোটি টকা কোনে বিনিয়োগ কৰিলে সংসদত এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি তথ্য পাতিলৈ ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ বাবে সাংসদ পদ খাৰিজৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে এই বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে শুকুৰবাৰে লোকসভা সচিবালয়ে সাংসদ পদ খাৰিজ কৰাৰ পিছতে এক সংবাদ মেলত ৰাহুল গান্ধী সৰব হৈ পৰে আদানী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে গৌতম আদানীৰ সুসম্পৰ্ক আছে বুলি উল্লেখ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কলে যে এইবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ বাবে তেওঁ চৰকাৰৰ উখত পৰিছে অৱশ্যে এনে পদক্ষেপক তেওঁ খাতিৰ নকৰে বুলি স্পষ্ট কৰি কলে যে হিন্দুস্তানৰ সুৰক্ষা আৰু গণতন্ত্ৰৰ ৰক্ষাৰ বাবে তেওঁ কাম কৰি আছে আৰু কৰি যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক তেওঁ ভয় নকৰে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে অভিযোগ কৰিলে যে আদানী আৰু মোদীৰ সম্পৰ্ক আৰু 20,000 কোটি টকা বিনিয়োগ সম্পৰ্কত আন এক ভাষণ লোকসভাত দিয়াৰ কথা আছিল আৰু এই ভাষণৰ পৰা বাৰণ কৰিবৰ বাবে অতি কৌশলেৰে সাংসদ পদ খাৰিজৰ ব্যৱস্থা কৰিলে বুলিও এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ালে ৰাহুল গান্ধী अदानी जी की शेल कंपनीज हैं उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया अदानी जी का पैसा नहीं है अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है पैसा किसी और का है सवाल यह है ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं ये सवाल मैंने पूछा मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला रिश्ता नया नहीं है रिश्ता पुराना है जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त अपने मित्र के साथ पार्लियामेंट में मैंने दिखाई यह सवाल मैंने पूछा फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी पॉइंट बाय पॉइंट कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है चिट्ठी लिखी कोई फर्क नहीं पड़ा फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है मैंने कहा स्पीकर से मैंने जाके कहा स्पीकर सर पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है मैंने एक चिट्ठी लिखी उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया दूसरी चिट्ठी लिखी उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया मैंने स्पीकर सर से कहा स्पीकर सर ये कानून है ये रूल है इन्होंने झूठा आरोप लगाया है मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं स्पीकर सर मुस्कुराते हैं कहते मैं नहीं कर सकता और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ আৰু এয়া আছিল ৰাহুল গান্ধীৰ সংবাদ মেলৰ আমি কিয়দাংশ আগবঢ়ালো ৰাহুল গান্ধী ক্ষমা বিচাৰিব লাগিছিল কিন্তু তেওঁ ক্ষমা নিবিচাৰিলে বা ক্ষমা নুখুজিলে এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সুদীৰ্ঘ 4 বছৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে ক্ষমা নুখুজিলে আনকি ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁৰ মন্তব্য প্ৰত্যাহাৰো নকৰিলে ক্ষমা বিচৰা হলে বিষয়টো অন্ত পৰিলেহেঁতেন বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই দেশৰ ওবিসি সম্প্ৰদায়ক হেয় কৰিবলৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে এই মন্তব্য কৰিছিল বুলিও মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাহুল গান্ধীক লড়াকু বিমান আখ্যা দি ভুল কৰিলে শাস্তি পাবই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী He should have rendered apology immediately after that speech. The matter would have been closed.
but Rahul Gandhi has not apologized, neither withdraw the comments against the community for long 5 years. So that once again goes to prove that comments were not unintentional. The comments were intentional and it was made to abuse the OBC community of the country. So he could have withdrawn that comment. He could have rendered an apology to the community because it is not an apology to any BJP people. But he has not done. He behaved arrogantly. So you have to, the court has to balance the arrogancy of an individual and pride and prestige of the OBC community. कभी कभी हम राजनीति करता हूँ, स्पीच में कभी कभी दो एक शब्द गलत निकल सकता है, वो कोई बड़ा बात नहीं होता है. सो मैं क्या करता हूँ, इमीडिएटली हम एक प्रेस रिलीज इशू करता हूँ या खुद पे मीडिया का सामने आके बोलता हूँ भाई ये मुझको नहीं बोलना चाहिए था. 5 साल राहुल गांधी जी ने किसी को एपोलॉजी नहीं किया. ये एपोलॉजी नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं था, ये एपोलॉजी ड्यू था सारे ओबीसी कम्युनिटी के लिए. तो आज भी आप देखिए कोर्ट वर्डिक्ट का बाद भी तो एपोलॉजी नहीं है. कोर्ट वर्डिक्ट का बाद भी ऐसे लड़ाकू विमान होके बैठा हुआ है कि भाई हम जुडिशियरी से ही फाइट कर लूंगा. आप सोचता है कि आपका प्राइड है, आपका प्रेस्टीज है, आपका अहंकार है, तो हमारे देश का ओबीसी कम्युनिटी का भी तो अहंकार है, उनका भी तो अस्मिता है. तो ये बात सबको देखना पड़ेगा और इसमें कोई राजनीति नहीं है. कांग्रेस दल में जो ओबीसी कम्युनिटी का नेता है, आप उनको जाके व्यक्तिगत बात कीजिए. क्या वो लोग खुश है? स्टेटमेंट देना अलग बात है, बट कोई किसी को अच्छा लगेगा कि पूरा कम्युनिटी शोर है बोल देने से? अगर जुडिशियरी का डिसीजन आपको ठीक नहीं लगे तो आप जाइए ऊपर कोर्ट में. जहां तक डिस्क्वालिफिकेशन का बात था, जो ऑर्डिनेंस लाया गया था कि तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन ना हो, वो तो राहुल गांधी खुद ही तोड़ दिया है. इफ कर्मा स्ट्राइक हिम बैक, तो उसमें हमारा क्या गलती है? तो अगर आपको कर्मा है स्ट्राइक यू बैक, उसमें हमारा क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर सिंह जब प्रधानमंत्री था, उन्होंने तो ये ऑर्डिनेंस लाया था कि तुरंत डिस्क्वालीफाई आप ना हो, आप ही जाके इसको तोड़ दिया. राहुल गांधी का करियर खत्म? नहीं, मेरा नहीं लगता है. आप हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप एक विरोधी दल का नेता है, आपको कोई मीटिंग में जाना तो माना नहीं है. आप रैली करिए, मीटिंग करिए, भारत जोड़ो यात्रा कीजिए, कोई माना नहीं है. लेकिन कोई कम्युनिटी का ऊपर इतना आपत्तिजनक मंतव्य मत कीजिए, करना ठीक नहीं है.